Hi guys, our next topic is ring counter. Ring counter is a typical application of shift register. अभी शिफ्ट रजिस्टर का वीडियो नहीं बनाया मैंने, जल्दी मैं बना दूंगा, बट एज सच आप इसे सेपरेटली भी समझ सकते हैं. इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. सो रिंग काउंटर इज अ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर. शिफ्ट रजिस्टर में बस यही चीज़ नहीं होती जो कि रिंग काउंटर में है. The output of last flip-flop is connected to the input of first flip-flop. That is the main difference between a ring counter and the shift registers. Okay, so this is the diagram of a ring counter. But उससे पहले it's very important that you should understand हम 4-bit ring counter की बात कर रहे हैं. Okay. अब हमें यह भी पता है कि ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स ओनली 1 बिट, ईदर 0 और 1. तो अगर मैं किसी नॉर्मल काउंटर की बात करता हूँ, सिंक्रोनस या फिर असिंक्रोनस, आई नो अगर मैं 4 बिट की बात कर रहा हूँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होनी थी, 2⁻n, वेयर स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. और जितने बिट होते हैं उतनी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, बिकॉज your each and every flip-flop stores only 1 bit. So that means 2⁴ that becomes equals to 16. तो अगर मैं किसी नॉर्मल काउंटर की बात करता, सिंक्रोनस या असिंक्रोनस की, तो 16 स्टेट्स होनी थी. बट आपका जो रिंग काउंटर है, दैट इज अ वेरी स्पेशल केस इन विच नंबर ऑफ स्टेट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड. तो उसमें इतनी ही स्टेट्स होंगी जितने आपके फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं. अगर मैं राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 4-bit रिंग काउंटर, दैट मीन्स आई एम हेयर यूजिंग 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 4. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द मेन एंड द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिंग काउंटर. दैट्स वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर synchronous and asynchronous counters. And another important thing is that the output of last flip-flop is connected to the input of first flip-flop. That's why it is different from the shift register, or it is one of the application of shift register. This point is also important. So this is the circuit diagram of your ring counter. We are talking about 4-bit ring counter. So we have 4 flip-flops, 1, 2, 3, 4, D flip-flop. The best thing about D flip-flop is that whatever the data or input I'm getting at the D, वो directly आपके output पे आ जाएगी. Okay, this is the thing about the D flip-flop. Okay, another important thing here, this circle stands for, we are talking about the negative edge triggered flip flop. This is not the positive edge triggered flip flop, this is the negative edge triggered flip flop. Means if this is the clock, this is the positive edge of the clock and this is the negative edge of the clock. So when this circle is here, we are talking about the negative edge of the clock. हाँ, अगर ये सर्कल नहीं होता तो हम पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक की बात करते हैं. ओके, so shift registers comes under the category of synchronous counter. That's why all the flip-flops are connected with the same clock. Okay, even though ring counter is different from the synchronous counter. Reason, because number of states are equals to the number of flip-flop used. और क्यों ये इनसे डिफरेंट हो जाता है और क्यों ये शिफ्ट रजिस्टर से डिफरेंट है? ड्यू टू दिस रीजन, द आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप, दैट इज Q3, that is connected with the input of the first flip flop. That's why हमारे पास जो रिंग काउंटर है वो आपका शिफ्ट रजिस्टर से भी डिफरेंट है और सिंक्रोनस काउंटर से भी डिफरेंट है. ओके, बिकॉज द फीडबैक सिस्टम इज प्रेजेंट हेयर, द आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप दैट इज कनेक्टेड विद द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. अगर मैं शिफ्ट रजिस्टर्स की बात करता, देन ये सिनेरियो नहीं होता जहाँ पर लास्ट फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से. और अगर मैं सिंक्रोनस की बात करता तो ना तो ये वाला सिनेरियो होता
और ना ही ये सिनेरियो होता वेयर आउटपुट becomes the input of first flip flop. See, output becomes the input of first flip flop. That's why we are saying it is the application of the shift register, because ये सिनेरियो जो है जहाँ आउटपुट इनपुट से कनेक्टेड है, ये सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का बिहेवियर है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. ओके, बट शिफ्ट रजिस्टर सिर्फ यहीं तक होते, वहाँ पर आउटपुट आपका इनपुट से नहीं कनेक्ट होने वाला था. और अगर मैं सिंक्रोनस की बात करता तो ये वाला सिनेरियो नहीं होता, आउटपुट इनपुट से कनेक्ट नहीं करता, और ना ही फीडबैक वाला सिनेरियो होता. बस क्या होता, आपकी सारी जो क्लॉक्स हैं, ओके, दीज आर दी क्लॉक्स, तो सारे फ्लिप फ्लॉप सेम क्लॉक से कनेक्ट होते. ओके, और असिंक्रोनस तो ये है ही नहीं, अदरवाइज आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप बिकम्स द क्लॉक ऑफ नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. ये जो आउटपुट है ये इसका क्लॉक बनता. सो दैट्स वाई ये सिंक्रोनस काउंटर नहीं है ना, इवन दो यू कैन से इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस काउंटर ऑल्सो, एंड इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर ऑल्सो ड्यू टू दिस बिहेवियर वेयर आउटपुट इज कनेक्टेड विद द इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, नाउ in the fourth point we have preset and clear inputs. okay, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. and here we have ORI which stands for overriding input. okay, now let's understand this point. okay, so these preset and clear inputs are asynchronous inputs, means they are not dependent on the clock, and they are also not dependent upon the input of the flip flops. They are asynchronous, so they are going to behave independently. That means, and they are active low. Active low means अगर इस प्रीसेट पे जीरो गया, सिंपल, आप ऐसे ध्यान रखिए, अगर इस प्रीसेट पर जीरो गया तो ये इस आउटपुट को इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉक, ये आउटपुट को क्या कर देगा, 1. जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, अभी के लिए समझ लीजिए, मैं प्रीसेट और क्लियर को भी अगली वीडियोस में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा. एंड क्लियर जो है, अगर ये एक्टिव लो है, ओके, इफ योर क्लियर इज एक्टिव लो, देन इट विल मेक द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप 0. ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉक क्या है. So that's why the name is overriding input, because it is going to override each and everything जो कि पहले प्रेजेंट है. तो अगर आपने overriding input 0 दी, ठीक है, तो आप देखिए केवल पहला फ्लिप फ्लॉप ही, ओनली फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, दैट इज कनेक्टेड विद द प्रीसेट ओनली. तो अगर आप overriding input को 0 देंगे, so that means your very first flip flop, द आउटपुट ऑफ वेरी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप बिकम्स 1. क्यों? क्योंकि प्रीसेट को 0 मिल रहा है, और ओनली द वेरी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, पहला फ्लिप फ्लॉप ही सिर्फ प्रीसेट से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली 0 उस पर जाएगा. और बाकी अगले तीनों फ्लिप फ्लॉप क्लियर से कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 0 0. दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड अबाउट द रिंग काउंटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे ही आपने ORI को 0 दिया, आपका ये वाला फ्लिप फ्लॉप 1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि प्रीसेट से कनेक्टेड है, और ये एक्टिव लो है. एक्टिव लो किससे पता चल रहा है, सर्कल से. अगर ये सर्कल ना होता तो एक्टिव हाई होता. इस क्लियर पे 0 देंगे तो क्या हो जाएंगे, इन तीनों फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो जाएंगे, इनकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0. ओके, चलिए इस चीज़ को हम टेबल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस इज द ओवरराइडिंग इनपुट. वी हैव क्लॉक, output of very first flip flop, second flip flop, third flip flop, fourth flip flop. So now this is basically when your overriding input is active low. okay, जब आपकी overriding input active low है, और आप कह सकते हैं सिंपली अगर 0 है तो, है ना, ऐसे भी कह सकते हैं, नॉट अ बिग डील. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लॉक, यही मैंने कहा, क्लॉक चाहे कुछ भी होता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता. और हमें ये भी नहीं फर्क पड़ता कि फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स पे क्या है, बट हमें ये पता है आउटपुट डिसाइड हो जाने वाली है. वो कैसे? क्योंकि Q0 जो है वो किससे कनेक्टेड है, प्रीसेट से. तो जैसे ही आपने ओवरराइडिंग इनपुट 0 दी, मैंने बताया
जैसे ही प्रीसेट को 0 मिलेगा आउटपुट क्या हो जाएगी 1, और जैसे ही क्लियर्स को 0 मिला तो आउटपुट क्या हो जाएंगी 0। सो वही हमने किया। सो विदाउट अप्लाइंग एनी क्लॉक आपका क्यू नॉट क्या हो गया 1, क्योंकि ये प्रीसेट से कनेक्टेड है, प्रीसेट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और अगले जो तीनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी आउटपुट क्या हो जाएगी 0। नाउ बस हमें इतना ही ओआरआई का फंक्शन चाहिए था, अब हो गया। आगे सारे टाइम के लिए ओआरआई ने 1 रहना है, दैट इज एक्टिव हाई, और अगर ये एक्टिव हाई है तो इसका पर्पस खत्म हो गया, क्योंकि हमें तो मतलब एक्टिव लो से ही था। ओके तो जब हमने इसको 1 किया, नाउ द वेरी फर्स्ट नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक इज अप्लाइड, एज आई टोल्ड यू कि all the flip flops are connected with the negative edge of the clock. This circle is basically representing the negative edge of the clock, वो negative edge of the clock को represent कर रहा है। तो जब पहला negative edge of the clock apply हुआ, ओके अब यहां पे काम खत्म हो चुका है ना। प्रीसेट ने इस आउटपुट को 1 तब करना था जब आप ओवरराइडिंग इनपुट को क्या करते, 0 अप्लाई करते, लेकिन अब तो 1 अप्लाई करोगे, तो यहां पर प्रीसेट का काम खत्म हो गया, तो इट बिकम 0। ओके एंड नाउ यहां पर ये फीडबैक सिस्टम पिक्चर में आया है, जहां पर आउटपुट ऑफ वेरी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सॉरी आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड विद द इनपुट ऑफ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो जैसी ये क्लॉक आपने अप्लाई करी, पहला नेगेटिव एज, जो Q3 आपका 0 था, ओके इट इज लाइक दिस 1 0 0 0 है ना। व्हेन ओआरआई आपने क्या अप्लाई किया था, दैट इज 0 एक्टिव लो, तब ये हो गया था। अब जैसे ही आपने क्लॉक अप्लाई करी, ओके मैं यहां डिफरेंट पेन से शो करता हूं। नाउ ओआरआई इज 1, सो व्हेन योर ओआरआई इज 1, ओके एंड द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक इज अप्लाइड, ओके then this Q naught basically shifts here, it comes here, okay so D naught पे अब 0 आ गया। और मैंने बोला D naught की क्या खास बात है, या D naught की D फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है, जो भी D के इनपुट पे आता है वो आपका डायरेक्टली आउटपुट पे आ जाता है। तो जब ये 0 यहां से इनपुट पे आएगा D के, वो बेसिकली कहां पर आ जाएगा, डायरेक्टली आउटपुट पे। और सिंपली मैं से ये कह सकता हूं कि सारा डेटा राइट शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये 0 यहां आया तो ये 0 यहां आया, ये 0 किस पे जाएगा, Q नॉट पे, तो ये वाला 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा किस पे, Q1 पे। आप इस टेबल से बेटर अंडरस्टैंड करेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो नाउ Q नॉट कम्स हेयर ड्यू टू दिस Q3, सॉरी 0 कम्स एट द Q नॉट, क्योंकि Q3 किससे कनेक्टेड था, Q नॉट से, तो यहां 0 आया, तो ये वाला 1 आगे शिफ्ट हुआ, दैट इज बेसिकली राइट शिफ्ट, वो हम शिफ्ट रजिस्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि ये 0 जैसी आया, इसने आगे 1 को भेज दिया, सिंपल। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि D के इनपुट पे जैसे ही 1 आया वो डायरेक्टली आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड दिस 0 कम्स हेयर, दिस 0 कम्स हेयर। नेक्स्ट फिर से हमने ओआरआई को 1 रखा है, उसका काम खत्म हो चुका है, दोबारा हमने 1 नहीं करना Q नॉट को। तो जब नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक अप्लाइड है तो Q3 कम्स एट Q नॉट अगेन, तो ये यहां आया, ये वाला Q नॉट आगे शिफ्ट हो गया, एंड दिस 1 शिफ्ट्स हेयर, ये मैंने शेड किया हुआ है, इसको शेडेड किया हुआ है, ओके एंड दिस 0 कम्स हेयर। सेम व्हेन नेक्स्ट नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक इज अप्लाइड, अगेन Q3 पे क्या पड़ा आपका 0, वो किस पे आया, Q नॉट पे, ओके और ये 0 आगे शिफ्ट हुआ, फिर से 0 आगे शिफ्ट हुआ, एंड दिस 1 कम्स हियर। अब जब अगला आपने क्लॉक अप्लाई किया तो अब Q3 पे 1 है, तो Q1 पे Q नॉट पे क्या आएगा, 1, ओके बिकॉज Q3 इज कनेक्टेड विद व्हाट, D नॉट, और जो भी D नॉट पे आएगा वो डायरेक्टली Q नॉट पे आएगा। ये D फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर है, वही हमने किया। तो जो भी 1 Q3 पे आया था वो डायरेक्टली किस पे आ गया, Q नॉट पे, ओके और Q1 पे क्या है 0, ओके Q2 पे क्या है 0 और Q3 पे क्या है 0, ओके। सो एज यू सी यहां पर एक रिंग, एक सर्कुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज रिंग काउंटर, ओके। होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके।
और अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं टाइमिंग वेव फॉर्म से बता देता हूँ कि वेव फॉर्म में कैसे हो रहा है। ओके, इसके बाद नहीं आपको करना, बिकॉज नाउ द पैटर्न हैज़ बिन रिपीट। सी 1 0 0 0 और ये रिपीट हो चुका है 1 0 0 0। कितनी स्टेट्स के बाद? 4 स्टेट्स के बाद। सी 1 2 3 4। आफ्टर 4 नंबर ऑफ स्टेट्स रिंग काउंटर इज रिपीटिंग इट सेल्फ। दैट्स वाई नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है? दैट बिकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड। कितने यूज हुए थे? 4। और आफ्टर 4 स्टेट्स, ओके, दिस इज 1 2 3 4, इट इज रिपीटिंग इट सेल्फ। 1 इज कमिंग बैक हेयर, तो अब सेम ही रिपीट होगा। आफ्टर एवरी 4 क्लॉक साइकिल्स, आफ्टर एवरी 4 स्टेट्स, रिंग काउंटर इज गोइंग टू रिपीट इट सेल्फ। ओके, होपफुली आपको पॉइंट समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द वेव फॉर्म और यहां से रिंग पैटर्न देखते हैं। इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ टेबल को ध्यान में रखना है। अगर टेबल समझ में आया तो वेव फॉर्म समझ में आ जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ एक क्लॉक बनाई है। इट इज़ बेसिकली अ स्क्वायर वेव। 50% ड्यूटी साइकिल, 50% के लिए ऑन है, 50% के लिए ऑफ है। दिस इज द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, दिस इज द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक। तो हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग से डील कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हाईलाइट किए नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक। ओके, ठीक है। नाउ ORI स्टैंड्स फॉर ओवरराइडिंग इनपुट, और मैंने इसको इनिशियली जब क्लॉक के नेगेटिव एज नहीं आए, बिकॉज जब क्लॉक के नेगेटिव एज आए, अगर आप ध्यान दें तो मैंने ORI को 1 किया, ठीक है। लेकिन इनिशियली जब क्लॉक का नेगेटिव एज नहीं अप्लाई हो रहा था, है ना, चाहे क्लॉक कुछ भी थी, तब हमने ORI को इनिशियली क्या रखा है? लो। दिस इज एक्टिव लो, और उसके बाद इट बिकम्स हाई फॉर ऑल दी नेगेटिव एजेस। When all the negative edges are going to appear, for that your ORI is basically what? 1. It is not coming into the picture because आपके जो asynchronous input हैं preset and clear, वो तब काम करेंगे जब आपका ORI क्या है? एक्टिव लो। ओके, अब देखिए सिर्फ टेबल को आपने यहां पर कॉपी पेस्ट करना है। जब ORI एक्टिव लो है, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉक, है ना, क्लॉक अभी कुछ भी हो, ठीक है, तो Q0 क्या हो गया? 1। ये देखिए जब ये लो था, यहां पर देखिए ये लो है, तो हमने Q0 को क्या कर दिया? 1। सो योर Q0 बिकम्स 1। सी, ये 1 हो गया। ओके, यहां पे 1 कर दिया। अब बाकियों पे ध्यान दीजिए। उस समय जब QR इनिशियली 0 है, तब Q1 Q2 Q3 क्या है? Q1 भी 0 है, हमने 0 रखा। Q2 भी हमने 0 रखा। सी, हमने Q3 भी 0 रखा। बस मैं टेबल को ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। अब QRI 1 हो गया। हाँ जी, हमने आगे सारी नेगेटिव एजेस के लिए QRI को 1 कर रखा है। देख लीजिए, अब जब पहला नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक आया, मैंने नाम लिख दिया ऊपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब पहला नेगेटिव एज आया, उस समय Q0 क्या है? 0। तो ये देखिए, ये 1 कब तक रहा? जब पहला नेगेटिव एज नहीं आया। जैसे ही पहला नेगेटिव एज आया, मैंने Q0 को क्या कर दिया? 0। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस समय 1 कौन हो रहा है? पहले नेगेटिव एज के लिए कौन 1 हो रहा है? Q1। हाँ जी, ठीक है। तो हमने जो Q1 0 चल रहा था, हमने उसे 1 कर दिया। किसके लिए? पहले नेगेटिव एज के लिए। मैं टेबल ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। बाकी आप ध्यान दें, Q2 भी 0 है पहले नेगेटिव एज के लिए, और Q3 भी 0 है पहले नेगेटिव एज के लिए। होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड नेगेटिव एज के लिए Q0 क्या है? 0। तो जब सेकंड नेगेटिव एज आया, Q0 क्या है? स्टिल 0 है। अब Q1 भी क्या हो गया? 0। हमने उसे 0 कर दिया, जो कि 1 चल रहा था। एंड व्हाट अबाउट Q2? Q2 अब 1 हो गया। देखिए, हमने इसको 1 कर दिया। एंड व्हाट अबाउट Q3? स्टिल 0। ओके, व्हाट अबाउट थर्ड नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक? थर्ड नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक, Q0 0, C Q0 0, Q1 0, और जो Q2 1 चलता आ रहा था, उसको भी हमने 0 कर दिया, C। लेकिन अब 1 कौन हो गया? Q3। सो दिस बिकम्स 1। होप यू गेट दिस। एंड लास्ट में, वेयर आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड विद द इनपुट ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, तो 1 वो Q0 पे आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो दोबारा से जब फोर्थ नेगेटिव एज आया, हमने देखिए Q0 को 1 कर दिया। ओके, एंड बाकी सब 0 हैं। ये भी 0, ये भी 0, और ये जो 1 चल रहा था ये भी 0 हो गया। तो अगर आप देखिए, ये 1 का पैटर्न है, सी, एंड इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर 4 क्लॉक्स।
after 4 states, so it is forming a circular pattern, it is forming a ring, that's why the name is ring counter. Okay, hope you get this. And the very important state which you have to keep it in mind, this, that in the ring counter number of states are equal to the number of flip flops used. That means अगर मैं नॉर्मल काउंटर की बात करता तो टोटल स्टेट्स तो 16 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी स्टेट्स यूज हो रही हैं? 4. तो हम यहां पर ये कह सकते हैं नंबर ऑफ अनयूज्ड स्टेट्स कितनी हुई? दैट इज 16 minus 4, that is 12. Okay, so hope you get this, है ना? कोई भी डाउट हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा. थैंक यू.